Welcome to MJC Learning. In today's topic, we are going to study about shares to the existing shareholder. So, in this existing shareholder, first we are going to see about right issue. Now, what is right issue? Right issue means the first right a shareholder has to get when company is selling the shares. Now, in this right issue is done when company requires capital, when company requires additional capital, when company wants to grow or carry on its business, then company will decide to sell shares. So in that, when company decides to sell share, first it has to give to the old shareholder. When company is giving to the old shareholder, then it is called as right issue. I just repeat, always remember, right issue is always given to the old existing shareholder. If last time company has sold a share for the first time, this time company is selling the second time. So when company is selling the second time shares, first it has to give it to the old shareholder, last time's shareholder. When you are giving the shares to them, then it is called as right issue. So the old shareholder has a right to get the shares. Whenever company is selling additional share, the old shareholder has the right to get the issue first. So now we come to the main part of the session, right issue. I had already told you the meaning. What is right issue? Given to the old shareholder. So when company requires capital, then company has to issue shares. First it will issue to the existing, means the old equity shareholder. So earlier also I had given shares, so I'll call the first the old equity shareholder. And to them I will give the share first in the proportion. Now proportion means the ratio. If Mr. A is an old shareholder, he has taken 10 share. So company has decided those who are having 10 share, they can get 2 shares now. So that 10 is to 2 is called as proportion ratio. So company decides the proportion. Just repeat, when company wants to raise further capital, means when company requires additional capital, company has to give it to the first to the existing, means the old shareholder, in their proportion to existing share. Proportion means ratio to the existing share. So existing means the old shareholder have the primitive right, means the first right. Here primitive right means the first right, okay, to buy the share. If they are not buying, then it goes to the market. I'll just tell you in Hindi, right issue यानी जब भी कंपनी को पैसे लगते हैं अगेन एंड अगेन, तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब भी कंपनी शेयर बेचेगा, पहले अपने ओल्ड शेयर होल्डर को देगा, जो है अभी कंपनी में शेयर होल्डर है अभी, उनको पहला दिया जाएगा. एग्जिस्टिंग मीन्स जो अभी है, और उनको देने के बाद ही वो बाहर दे सकते. अब कितना देंगे उनको? प्रपोर्शन में यानी रेशियो में. सपोज वो शेयर होल्डर के पास 10 शेयर है, तो कंपनी कहता है कि 10 जिसके पास है उसको 2 हम शेयर देंगे, यानी 10 है तो आपको 2 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिल रहा है. अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास प्रीमिटिव राइट्स है, यानी फर्स्ट राइट है, पहले उनको पूछना है आप शेयर लेने वाले हो या नहीं. वो नहीं लेंगे तो हम बाहर मार्केट में देंगे. सो हमेशा राइट इशू मीन्स फर्स्ट गिव इट टू द ओल्ड शेयर होल्डर एंड इन देयर प्रपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग. यानी अब उनके पास कितना शेयर है उसके हिसाब से आपको देना है. 10 शेयर है, कंपनी डिसाइड करती है 2 देना है. सो इज इट क्लियर? द राइट इशू, इट इज गिवन टू
first to the old shareholder, that is called as existing shareholder. Now provisions of right issue. Right issue देने का क्या क्या provisions है? Company sells shares to the existing shareholder at a less price. See, old shareholder, they get the price less of the share. The same share is sold in the market for 20 rupees, but the old shareholder will get for 18 rupees. So that is the advantage a shareholder gets. So company can sell shares to existing shareholder at a price less than the market value. Means shares जो ओल्ड शेयर होल्डर को दिया जाता है उसकी कीमत कम होती है, जो बाहर मार्केट में बिकता है उसकी कीमत ज्यादा है. सपोज मार्केट में वही शेयर 20 का है तो हमारे ओल्ड शेयर होल्डर को 18 रुपए में पड़ेगा. When company sells shares second time, third time, company will send letter. That letter is called as letter of offer. लेटर ऑफ ऑफर भेजा जाएगा ओल्ड शेयर होल्डर को कि हम आपको शेयर दे रहे हैं, आपके पास 2 शेयर है, हम आपको 2 और 10 शेयर है, हम आपको 2 दे रहे. सो कंपनी सेंड्स लेटर ऑफ ऑफर. अब वो लेटर ऑफ ऑफर कंटेन्स व्हाट, क्या है उसके अंदर? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर, कितना शेयर कंपनी दे रहा है. पीरियड ऑफ ऑफर, हाउ मच टाइम, ओके, ये ऑफर कितने दिन के लिए खुला है. सो कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन. सो 1 महीने के लिए ये ऑफर खुला रहता है ज्यादा से ज्यादा. राइट टू रिनाउंस, इफ आई डोंट वांट द शेयर I can give it to my friend or my relatives. So that is called as renounce. I can give my right to someone else. So I'll just repeat. Company can sell shares to the existing shareholder को भेजा जाएगा at a less price. Company sends offer letter. Offer letter contains number of shares. Period of offer means कितने समय के लिए ऑफर है. एंड राइट टू रिनाउंस मीन्स अपना हक हम दूसरे को दे सकते हैं. नाउ लेटर ऑफ ऑफर कैसा भेजा जाएगा? हाउ अ लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय पोस्ट ऑफिस, बाय स्पीड पोस्ट, कुरियर पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. मीन्स कंपनी कैन सेंड अ मेल ऑल्सो. ओके, सो दीज आर द 4 वेज कैसे कंपनी आपको लेटर ऑफ ऑफर भेज सकता है. रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, courier or through electronic mode. If the shareholder does not respond, suppose offer letter is given, company is waiting for 15 days, and if you say don't say anything whether you are interested or you are not saying anything कि हाँ मुझे चाहिए नहीं चाहिए, company can now offer to new investor. इन्हें मार्केट में दूसरे को दे दिया जाएगा because you are not saying anything, you are not interested. So company is offering the shares to the new public. Company has to collect minimum subscription of 90%. Now 90% and minimum subscription means what? जब भी कंपनी शेयर बेचने के लिए निकालती है, अगर 10,000 शेयर बेचने को निकाला है तो 10,000 का 90% कितना है? 9,000. वो 9,000 शेयर बिक जाना चाहिए कंपनी का, तो ही कंपनी चल सकता है. देन ओनली कंपनी कैन रन. ओके, now we proceed to the next topic in the same. It is about also right issues. Now we are proceeding with a bonus shares. Now if you go to the company where workers are working, they get bonus during Diwali. Yes, they get bonus during Diwali. Why? Because company has made a good profit, so some part of the profit is given to a worker. Here also, when company makes a good profit, company decides to give a bonus share. जब भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाता है, कंपनी अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत शेयर के रूप में पब्लिक को बांटता है. When company makes a good profit, company decides to issue a bonus share as a part of profit. Come, I'll take you to the brief description about a bonus share. I have made it very small and short and sweet so that it could be understood by you very easily. Bonus shares are free shares.
इट इज अ फुल्ली पेड शेयर मीन्स आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में दिया जा रहा है. फुल्ली पेड, पैसा ऑलरेडी भरा हुआ है, आपने नहीं भरा है बट आप कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से कंपनी आपको निकाल के दे रहा है. सो बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर. इट इज अ फ्री शेयर गिवन टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर. एग्जिस्टिंग मीन्स जो अभी कंपनी में है शेयर होल्डर के नाम पे, उन्हीं को दिया जाता है. जो जिसने बेच दिया शेयर, अब वो शेयर होल्डर नहीं है, उनको नहीं. इट इज गिवन टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. गिवन इन प्रपोर्शन. आपके पास 10 शेयर है तो कंपनी 2 फ्री शेयर दे रहा है. 20 शेयर है तो कंपनी 4 फ्री शेयर दे. सो इफ यू आर हैविंग 10 शेयर, company is giving you 2 free share. If you are having 20 share, company is giving you 4 free share. So bonus share is a free share and it is given by a company which is financially sound. Financially sound means जो अच्छी तरह से चल रहा है, जिसके पास कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं है और वो प्रॉफिट कमा रहा है, तब जाके कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है. बोनस शेयर इज पेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व, यानी जो जमा हुआ है प्रॉफिट उसमें से कंपनी देता है. बोनस शेयर पेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड. एक्यूमुलेटेड मीन्स जमा है, जमा, उसमें से कंपनी आपको बोनस शेयर्स देता है. अब मान लो कंपनी के पास 100 रुपया जमा है एज रिजर्व और कंपनी आपको 2 शेयर बोनस शेयर दे रहा है. सी, एक शेयर बोनस शेयर की कीमत है 10, 2 दे रहा है यानी 20. तो जो कंपनी के पास 100 रुपया जमा है रिजर्व, उसमें से कंपनी 20 रुपए निकाल के अपने कैपिटल में डाल देगा और आपको शेयर फ्री में दे रहा है. आई जस्ट रिपीट, 100 रुपीज जमा है, 2 शेयर कंपनी दे रहा है, एक शेयर की कीमत है 10, 2 शेयर इज 20. सो वो 20 रुपीज प्रॉफिट में से निकाल के कंपनी कैपिटल के अकाउंट में डालेगा और आपको शेयर फ्री में देगा. इसके लिए प्रॉफिट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट को हमने कैपिटल में डाला, 20 रुपया कैपिटल के अंदर आ गया है, सो इट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. नाउ प्रोविजन. कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर कहां से दे सकता है? कैन इश्यू बोनस शेयर आउट ऑफ रिजर्व. कंपनी के पास पैसा जमा है तो, या नहीं तो प्रीमियम अकाउंट से. प्रीमियम अकाउंट मीन्स व्हाट? 10 रुपए का शेयर अगर कंपनी ने 12 रुपए में सेल किया है तो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिला है, वो 2 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी के प्रीमियम अकाउंट में जाता है और वो अकाउंट में पैसा तब निकालेगा जब कंपनी को ऐसा बोनस शेयर बेचना है तो. सो फ्री शेयर्स, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. सिक्योरिटी मीन्स शेयर प्रीमियम अकाउंट. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. कंपनी हर बार जब भी प्रॉफिट होता है थोड़ा पैसा ये रिडम्पशन अकाउंट में डाल के रखता है. सो इन 3 होगा, इन तीनों में से ही हम लोग बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं. A company cannot issue bonus share out of reserve created for revaluation of asset. Revaluation means कंपनी एसेट की वैल्यू निकालता है. पहले मैंने 1 लाख में लिया है, आज की वैल्यू उसकी 10 लाख से, तो वो 10 लाख रिवैल्यूएशन है, तो उसके लिए अलग से अकाउंट में क्रिएट किया जाता है, तो उसमें से वो रिजर्व निकाल के हम बोनस शेयर नहीं बेचेंगे. बोनस शेयर इज ओनली इशूड आउट ऑफ रिजर्व, नॉट फ्रॉम रिवैल्यूएशन. कंपनी कैनॉट इश्यू बोनस शेयर इंस्टेड ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड के बदले कंपनी बोनस शेयर नहीं देगा. बोनस शेयर फ्री शेयर है, डिविडेंड अलग, वो देना ही है, और फ्री शेयर यानी बोनस शेयर भी व्हेन कंपनी मेक्स प्रॉफिट दैट टाइम इट इज इश्यूड. वंस अनाउंस्ड, एक बार बोनस शेयर डिक्लेयर हो गया, इट कैनॉट बी विदड्रॉन मीन्स कैनॉट बी कैंसल. कंपनी हैज टू गिव द बोनस शेयर. कंपनी कैनॉट कैंसल द बोनस शेयर्स. सो बोनस शेयर इज ऑलवेज अ फ्री शेयर. बोनस शेयर होल्डर कैन नॉट रिनाउंस. अगर मुझे वो बोनस शेयर नहीं चाहिए तो मैं दूसरे को दे दूं, ऐसा नहीं कर सकती हूँ. आई हैव टू टेक द बोनस शेयर. देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कम से कम शेयर बिकना चाहिए, ऐसा नहीं है. सो दिस इज द एंड ऑफ बोनस शेयर.